Good afternoon to you all. Last lecture, we had finished with the concept of index number. हमने लास्ट लेक्चर कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स ऑफ इंडेक्स नंबर देखे थे. व्हाट इज इंडेक्स नंबर? Index number is a statistical device which is used to measure the changes in the group of related variables. So it is a statistical device with which we are observing the changes in the group of related variables. Variables like the changes in the price, quantity, changes in the share market. So accordingly, there are different types of index number. The पहला type है that is called price index number. So the price index number, it measures the changes in the prices of the goods. तो प्राइस इंडेक्स नंबर क्या करता है कि चेंजेस इन प्राइसेस, अगर प्राइसेस में चेंजेस ऑब्जर्व करना है तो वी आर मेकिंग द यूज ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर. हियर वी आर observing the changes in prices between the two different periods. Next is quantity index number. Now quantity index number, it measures the changes in physical volume of a production, यानी कि changes in the level of output in the economy. Quantity index number क्या बताता है? Changes in the production और आउटपुट. तो यहाँ पे अगर हमको प्रोडक्शन कितना परसेंट से चेंज हो रहा है, अगर वो फाइंड आउट करना है तो वी कैन मेक द यूज ऑफ क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. सो वी कैन मेजर द चेंजेस इन एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन over a period of time with the help of this quantity index number. Next index number, that is a value index number. अभी value index number calculate करने के लिए what we do, we first calculate the value. अभी value कैसे calculate करेंगे? By using the formula price into quantity. Here we observe the changes in the value of the rupees. So we are observing the changes in the variable in terms of the rupees. यहाँ पे हम लोग changes कैसे observe करें? We are calculating the changes or we are observing the changes in any variable in terms of the rupees. Next is special purpose index number. Special purpose index number is used for the specific purpose. तो अभी स्पेसिफिक पर्पज यानी कि क्या, जैसे एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट इंडेक्स नंबर, यानी कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट में जो चेंजेस, फॉरेन ट्रेड में जो चेंजेस है वो ऑब्जर्व करने के लिए वी आर मेकिंग द यूज ऑफ एक्सपोर्ट इंपोर्ट इंडेक्स नंबर. Similarly, we can calculate the labor productivity with the help of the special purpose index number. Similarly, we can observe the changes in the share market prices. Share market में जो ups and downs होते, to observe that changes, we are making the use of share price index number. So these are the different types of index number. Apart from this, we are using the consumer price index number. So we are being a consumer, we are more concerned with the consumer prices. Consumer prices यानी कि हम लोग कौन से मार्केट में डील करते हैं, कौन से मार्केट में बाइंग एंड सेलिंग करते हैं. तो वी आर डीलिंग इन द रिटेल मार्केट. हम लोग किनसे, कौन से मार्केट में डील करते हैं? तो रिटेल मार्केट. तो चेंजेस इन द रिटेल मार्केट प्राइसेस, दैट इज कॉल्ड एज एन consumer price index number. It is also called as a retail price index number. The next one, the wholesale price index number. Here we observe the changes in the prices of goods in wholesale market.
The next type, that is the index number of agricultural production. So here we calculate the changes in agricultural production between the two different period. Similarly, industrial production, index of industrial production, it measures the changes in industrial output. Index of service production, index of export import and human development. Now while calculating the inflation, अभी इंडिया में जो हम लोग बोलते हैं कि इन्फ्लेशन, महंगाई इंक्रीज हुआ है डिक्रीज हुआ, तो वो कौन से बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है? तो इन इंडिया वी आर मेकिंग द यूज ऑफ दिस कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एंड द होलसेल प्राइस इंडेक्स. नाउ व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस इंडेक्स नंबर? तो अभी इंडेक्स नंबर क्यों स्टडी करने का? फर्स्ट, इट्स यूजफुल टू द गवर्नमेंट इन फ्रेमिंग द पॉलिसीज. गवर्नमेंट को पॉलिसीज फ्रेम करने के लिए ये इंडेक्स नंबर का यूज होता है. जैसे द पॉलिसीज सच एज एग्रीकल्चरल पॉलिसी, इंडस्ट्रियल पॉलिसी, fixation of wages and dearness allowances in accordance with the cost of living. तो here this, जैसे अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन इंडेक्स नंबर जो हमने कैलकुलेट, दिस हेल्प अस टू फ्रेम इट, helpful to the government to frame the suitable policy to support the industrial or agricultural growth. Similarly, it is useful to the government to fix the dearness allowances. अभी जो एम्प्लॉयज को जो डियरनेस अलाउंसेस मिलती है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, महंगाई भत्ता, यानी कि क्या, जितना इन्फ्लेशन, अभी इंडेक्स नंबर से हम लोग इन्फ्लेशन रेट कैलकुलेट करते हैं, तो जितना इन्फ्लेशन कैलकुलेट इंक्रीज होगा तो उतना परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को डियरनेस अलाउंसेस देते, यानी कि जितना इन्फ्लेशन रहेगा उतना परसेंट गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के अलाउंसेस बढ़ाएगी, यानी कि डीए बढ़ाएगी. तो महंगाई भत्ता यानी कि उतना परसेंट सैलरीज में गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को इंक्रीमेंट मिलेगी. सिमिलरली, इट इज यूजफुल विद द कॉस्ट ऑफ लिविंग. नाउ हियर द गवर्नमेंट कैन फ्रेम द पॉलिसीज अकॉर्डिंग टू द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ द पीपल. Further, it is useful to study trends and tendencies. The index number is widely used to measure the changes in the production, prices, export and import over a period of time. अभी इंडेक्स नंबर का यूज किसके लिए होता है? जो इकोनॉमी में जो चेंजेस हो रहे, किसमें, प्राइसेस में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में. To observe that changes, we can make the use of these index number. तो ये जो changes है, वो changes observe करने के लिए, to frame the policies accordingly, that this index number is useful. So in this way, it is useful to observe the trends. यानी कि जैसे अभी इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, इंडस्ट्रियल ग्रोथ हो रहा है कि डाउन हो रहा है 5 years में, तो वो हम लोग कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं? दैट इज विद द हेल्प ऑफ दिस इंडेक्स नंबर. फर्दर, इंडेक्स नंबर इज यूजफुल फॉर prediction for the future based on the analysis of past and present trend in economic activity. तो ये जो इंडेक्स नंबर है, इसका यूज हमको किस लिए होता है? फोरकास्टिंग के. Now what is forecasting? फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? फोरकास्टिंग मीन्स व्हाट? प्रेडिक्शन, यानी कि फ्यूचर में क्या चेंजेस होंगे.
उसके बारे में हम लोग प्रेडिक्शन करते हैं, उसके बारे में हम लोग अंदाजा लगाते हैं. दैट इज कॉल्ड एज ना फोरकास्टिंग. तो अभी फोरकास्टिंग कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ प्रीवियस ट्रेंड, ऑन द बेसिस ऑफ दिस इंडेक्स नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ द प्रीवियस ईयर डेटा, यानी कि इंडेक्स नंबर के बेसिस पे वी कैन प्रेडिक्ट द फ्यूचर चेंजेस. अभी जैसे अगर लास्ट 4-5 ईयर्स में अगर इंडेक्स नंबर अगर इंक्रीज हो रहा है, द प्रोड्यूसर कैन फोरकास्ट दैट द फ्यूचर ग्रोथ इन द इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और द एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन. तो उसके बेसिस पे हम लोग फ्यूचर में कितना परसेंट इकोनॉमी में ग्रोथ होगा, या एक्सपोर्ट इंपोर्ट या इंडस्ट्रियल आउटपुट में ग्रोथ हो सकता है, इसके बारे में हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द ट्रेंड. हम लोग इंडेक्स नंबर से क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं? ट्रेंड. अगर ट्रेंड कंटिन्यूसली अपवर्ड मिलता रहेगा तो उसका मतलब आगे जाके भी ये क्या होगा? इट विल इंक्रीज. So on the basis of this trend, we can forecast future changes. तो फ्यूचर में आउटपुट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, मार्केट अप होगा कि डाउन होगा, ये फोरकास्ट करने के लिए वी आर मेकिंग द यूज ऑफ दिस इंडेक्स नंबर. फर्दर, इंडेक्स नंबर is useful for measuring the inflation. इंडेक्स नंबर किसके लिए यूजफुल होता है? मेजरिंग द इन्फ्लेशन, महंगाई कैलकुलेट. अभी इन्फ्लेशन इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा? इफ इट इज इंक्रीजिंग, अगर इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो इट विल बी एनेबल टू द गवर्नमेंट टू फ्रेम द पॉलिसीज अकॉर्डिंग. सपोज इफ द इन्फ्लेशन इज गोइंग टू इंक्रीज, अगर इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज हो रहा है, इफ इट इज इंक्रीजिंग, अगर इन्फ्लेशन रेट अगर इंक्रीज हो रहा है तो गवर्नमेंट कैन गिव द डियरनेस अलाउंसेस, मेड द प्रोविजन फॉर डियरनेस अलाउंसेस टू देयर एम्प्लॉइज. तो गवर्नमेंट अपने एम्प्लॉइज को डियरनेस अलाउंसेस अनाउंस करेगी ताकि दे विल नॉट सफर, दे शुड नॉट गेट सफर्ड बिकॉज ऑफ द हायर इन्फ्लेशन रेट. तो गवर्नमेंट उतना अलाउंस अपने एम्प्लॉइज को इंक्रीज करेगी. तो इट इज यूजफुल टू प्रेडिक्ट द इन्फ्लेशन and announce the dearness allowances to their employees. Further, it is useful to present the financial data in the real term. अभी इंडेक्स नंबर हमको किस लिए यूजफुल हो रहा है? प्रेजेंटिंग द फाइनेंशियल डेटा इन रियल टर्म. रियल टर्म मीन्स व्हाट? दैट इज द एक्चुअल डेटा. अभी जैसे that we are showing that the trend line is showing that there is an increase in the प्रोडक्शन. अभी जीडीपी इंक्रीज हो रहा है, ऐसे हम लोग को देख रहा है. अभी केवल आउटपुट की वैल्यू इंक्रीज हो गई, उसका मतलब इकोनॉमी ग्रो कर रही है, ये नहीं हो रहा. नाउ सपोज पूरे इकोनॉमी में अगर राइस का प्रोडक्शन हुआ है, सब एज्यूम दैट इज 100 kg. राइस का प्रोडक्शन कितना हो गया? 100 kg. नाउ प्रीवियस ईयर में अभी सपोज पहले प्राइस था पर केजी राइस का अगर 50 रुपीज, अभी राइस का प्राइस कितना था? 50 रुपीज. तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ राइस प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी? तो हमको कितना वैल्यू मिलेगा? दैट वी विल गेट द 5000 रुपीज. यानी कि आउटपुट का जो वैल्यू है, मनी वैल्यू कितना मिलेगा? 5000 रुपीज. लेकिन अगर प्राइस इंक्रीज हुआ, प्रोडक्शन उतना ही है 100 kg. नाउ प्राइस नाउ इंक्रीजेस टू 60 रुपीज. तो हमको नेशनल इनकम अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे रियल टर्म, मनी टर्म में, तो हमको कितनी वैल्यू मिलेगी? दैट वी विल गेट द टोटल वैल्यू ऑफ 6000 रुपीज. अभी यहाँ पे वी कैन सी दैट
वैल्यू इंक्रीज हो रही है, तो इसका मतलब हम लोग ये नहीं कह सकते कि इनकम, हमारी नेशनल इनकम इंक्रीज हो रही है। हमको ये जो इंक्रीजिंग वैल्यू जो मिल रहा है वो किसके कारण मिल रहा है? दैट इज बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द इन्फ्लेशन। तो ये जो इन्फ्लेटेड वैल्यू मिल रही है, महंगाई इंक्रीज हो गई, उसके कारण हमको प्रोडक्शन उतना ही है लेकिन उसकी वैल्यू इन्फ्लेटेड हो रही है। पहले 5000 मिल रही थी, अभी 6000। तो एक्चुअल तो रियल वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे? तो वी विल कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन, कितना परसेंट से प्राइस बढ़ा, वो हमको कैसे पता चलेगा? रेट ऑफ इन्फ्लेशन। So we will calculate the deflation. We'll deflate the value with the help of inflation rate. So deflating means what? We will adjust. यानी कि जितना परसेंट इन्फ्लेशन रेट रहेगा उसके बेसिस पे ये जो इन्फ्लेटेड वैल्यू हमको मिला है उसको हम लोग क्या करेंगे? एडजस्ट करेंगे इन्फ्लेशन रेट। तो अगर उसको एडजस्ट करेंगे तो हमको एग्जैक्ट एक्चुअल वैल्यू मिलेगी। तो इन दिस वे अगर केवल प्राइस बढ़ने के कारण अगर इन्फ्लेटेड वैल्यू हमको इनकम की मिल रही है, एक्चुअल प्रोडक्शन तो उतना ही है, तो रियल वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वी आर यूजिंग द डिफ्लेटर, वी आर डिफ्लेटिंग दैट वैल्यू। हम लोग क्या करते हैं? उसको डिफ्लेट करते हैं और डिफ्लेट करने के बाद वी आर गेटिंग द एग्जैक्ट वैल्यू। सो इन दिस वे टू कैलकुलेट द एक्चुअल वैल्यू दैट वी आर मेकिंग द यूज ऑफ दिस इंडेक्स नंबर। तो अभी इंडेक्स नंबर कैसे कैलकुलेट करने का? तो वी हैव टू फॉलो these steps. To calculate the index number, what we have to do? First, we have to decide the purpose. And depending upon the purpose of index number, किस लिए हम लोग को इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना, accordingly we have to measure that we will select the index number. अभी जैसे हमको ग्रोथ फाइंड आउट करना है, इन्फ्लेशन फाइंड आउट करना है या रियल वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो उसके बेसिस पे पर्पस के बेसिस पे we will decide to calculate the index number. So based on purpose we will select the different index number. तो पहला स्टेप है, we have to specify the purpose of calculating the index number. The next is selection of a base year. Now फर्स्ट लेक्चर में हमने देखा था कि अगर इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना है तो वी नीड द 2 years, 2 different period में जो चेंजेस आ गए, we are observing that changes with the help of a index number. The year from which we are observing these changes, अभी जिस ईयर यानी कि जो प्रीवियस ईयर से अभी तक कितना चेंज हुआ प्राइस में या आउटपुट में, तो उसके लिए प्रीवियस ईयर चाहिए। अभी प्रीवियस ईयर कौन सा ईयर लेने का? दैट प्रीवियस ईयर इज कॉल्ड एज एन बेस ईयर। ये जो जिस ईयर से हम लोग चेंजेस ऑब्जर्व कर रहे हैं तो वो ईयर को हम लोग कहते हैं बेस ईयर। बट while selecting the base year, अभी previous year यानी कि कौन सा ईयर लेंगे? तो that base year should be such a year which is free from any kind of the disturbances, whether it is social, economic and political disturbances. That means what? That year should be a normal year. किसी भी तरह का डिस्टर्बेंसेस नहीं होना चाहिए, नेचुरल कैलामिटीज या इकोनॉमिक इश्यूज नहीं होनी चाहिए या अदर कैलामिटीज या पेंडेमिक नहीं रहनी चाहिए। So that should be a normal year. तो अभी देखो, पहले we were using 2004 and 5 as a base year. At present we are using the 11 and 12, okay, as a base year. अभी ये जो ईयर है टाइम टू टाइम रिवाइज होता है बेस ईयर, क्योंकि दैट अगर सपोज 2020 के लिए अगर हमको बेस ईयर सिलेक्ट करना है तो अभी इट शुड नॉट बी टू फार अवे, यानी कि ज्यादा डिफरेंस नहीं रहना चाहिए। तो इसीलिए ये बेस ईयर जो है we are revising. Now here the third step, selection of item. अभी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए we have to select the commodity. अभी जैसे प्राइस इंडेक्स कैलकुलेट करना है
तो अभी मार्केट में कई सारे कमोडिटीज है जो हम लोग डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. कैन वी इंक्लूड ऑल दोज कमोडिटीज व्हाइल कैलकुलेटिंग द इन्फ्लेशन? नॉट possible. We are only selecting that commodities which are important in the day to day life. तो कोई कुछ सिलेक्टेड कमोडिटीज को ही हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर. These selected commodities are called as a basket of commodities. और जो बास्केट ऑफ कमोडिटीज का जो प्राइसेस है उसके बेसिस पे वी आर कैलकुलेटिंग द इंडेक्स नंबर. है तभी हमको पता चलता है कि इन्फ्लेशन इंक्रीज हुआ है कि डिक्रीज हुआ है. So it can be your that egg, food, vegetables, fish. So such a selected commodities we are choosing to calculate the index. We are considering their prices. So these are called as a basket of commodities, and these commodities should be the true representatives. These are selected on the basis of so these are the commodities which we are using in a day-to-day life, and along with that we are assigning the weights. अभी सभी कमोडिटीज इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं रहते. जैसे मिल्क उसका इंपॉर्टेंस इज डिफरेंट, ऑयल का इंपॉर्टेंस is different, oil prices are more volatile. So accordingly we are assigning the weights. So based on importance of that commodity, उस commodity को हम लोग weightage देते हैं और again then we'll calculate the index. Next step, selection of a price quotation. चलो हमने commodity select किया, कौन सा commodities के prices लेना है तो वो commodities पहले हमने select किया. basket of commodities हमने select किया. नेक्स्ट स्टेप क्या है? दैट वी हैव टू सिलेक्ट द प्राइसेस. अभी प्राइसेस भी डिफर होते हैं. अभी आप मॉल में जाओगे तो वो कमोडिटी का प्राइस अलग रहेगा. रिटेल शॉप में, छोटे शॉप में जाओगे तो प्राइस विल बी डिफरेंट. अगर रोड साइड सेलर के पास जाओगे प्राइस अगेन डिफर रहेगा. इट मींस व्हाट? द प्राइसेस ऑफ द एवरी कमोडिटी दैट डिफर्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, market to market. So which price we have to consider while calculating the index number? अगर प्लेस वाइज, मार्केट वाइज अगर प्राइस डिफरेंट हो रहा है, एक ही कमोडिटी का अलग अलग प्राइस है अलग अलग शॉप में या मार्केट में, तो अभी कौन सा प्राइस वी हैव टू सिलेक्ट टू कैलकुलेट द इन्फ्लेशन रेट? वी शुड सिलेक्ट द प्राइसेस ओनली थ्रू द स्टैंडर्ड शॉप. तो स्टैंडर्ड शॉप से हम लोग प्राइस लेंगे and we will obtain the prices only from these reporting agencies, that is unbiased price reporting agencies. Then only we will be able to calculate the index number accurately. Next step, choice of a suitable average. अभी index number क्या है? Average है. Now which average, which formula we have to use to calculate this average? अभी average calculate करने के लिए कई सारे फॉर्मूलाज यूज होते हैं. तो उसमें से कौन सा फॉर्मूला हम लोग इंडेक्स नंबर के लिए यहाँ पे यूज करेंगे टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर? तो टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर वी आर यूजिंग द एरिथमेटिक मीन. ओके, इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने के लिए हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करते हैं? एरिथमेटिक मीन. टू कैलकुलेट द इंडेक्स नंबर वी आर सिलेक्टिंग द एरिथमेटिक मीन. नेक्स्ट वन, असाइनिंग द प्रॉपर वेट. अभी जैसे मैंने कहा ये डिफरेंट कमोडिटीज हैव different uses, different importance. They are of different importance. So according to their importance, they should be assigned the weightage. So based on the importance of that commodity, वो commodity के importance के basis पे हम लोग उसको क्या करेंगे? वेट असाइन करेंगे, क्योंकि हर एक commodity का importance अलग अलग है. तो assigning the weight,
That is another task. Weights are of two types, quantity weights है और दूसरा है वैल्यू वेट्स। दो तरीके से हम लोग वेट्स साइन कर सकते हैं, एक तो क्यू क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके या वैल्यू का यूज करके। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फॉर्मूला। तो अभी फॉर्मूला कौन सा इंडेक्स का यूज करें? तो अगर प्रोडक्शन, अगर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन या एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन हमको अगर कैलकुलेट करना है तो वी विल यूज क्वांटिटी इंडेक्स। चेंजेस इन वैल्यू अगर कैलकुलेट करना है तो हम लोग वैल्यू इंडेक्स यूज करेंगे। नाउ हियर अकॉर्डिंगली अगर चेंजेस इन प्राइसेस कैलकुलेट करना है वी विल यूज द प्राइस इंडेक्स। अकॉर्डिंगली विल यूज द डिफरेंट फार्मूलाज। अगर शेयर मार्केट में चेंजेस ऑब्जर्व करने तो हम लोग वी विल यूज द शेयर मार्केट दैट स्पेसिफिक इंडेक्स नंबर फॉर द शेयर मार्केट प्राइसेस। So these are the steps for calculating the index number. तो index number calculate करने के लिए हमको ये steps follow करने पड़ेंगे। Next lecture we will do the methods of calculating the index number. तो next lecture हम लोग methods के use करेंगे, कौन से methods use करते हैं index number calculate करने के लिए। Two methods हैं, simple index number है, दूसरा है weightage index number. So what is simple index number and what is the weightage index number? That we will do in the next lecture. Now, if you are having any doubt regarding this, you can ask. किसी को कुछ डाउट्स रहेगा, you can raise your hand.